A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed a lots of the important topic related to the class 12th accountancy volume 2. In this session, firstly we discussed the issue, forfeiture and reissue of the share, and thereafter we will discuss the various important concepts related to the part B, that is an cash flow statement, various tools and techniques of the analysis of financial statement, that is in comparative and common size. So now we are moving to the common size, comparative statement of PL and common size and comparative balance sheet. So now in this video, let's we start the new topic related to the part A, volume 2, that is an issue, forfeiture and reissue of the forfeited share, and thereafter we will move to the new topic. The topic is issue of debenture for consideration other than cash, and thereafter we discussed at end of today's video, that is an interest on debenture. So before starting the today's session, let's we solve the practical problem given you as an home assignment, that is an question which are related to the forfeiture and reissue of the share. So the question is, as you can see that on your screen, that is an X Limited forfeited 500 share for non-payment of call money ₹5. X Limited ने 500 शेयर फॉरफीट कर लिया. कैसे, क्यों फॉरफीट किया? क्योंकि उसने कॉल का पैसा नहीं दिया 5 रुपए, और शेयर का पैसा कितने का था? शेयर कितने का था? 10 रुपीज का. आउट ऑफ सच शेयर ओनली 100 शेयर वेर इशूड एट, यानी इस 500 में से सिर्फ कितना शेयर इशूड किया गया? 100 शेयर. कितने पे इशू किया गया? 9 रुपए पे, एज फुल्ली पेड अप. आपको दो अमाउंट फाइंड आउट करनी थी. द फर्स्ट विल बी अ amount transfer to capital reserve, and number second you have to calculate the balance in share forfeiture account. So most of the student को amount transfer to capital reserve account निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एन बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये थोड़ा सा आपको ट्रबल करेगा. सो इसके लिए हम लोग यू नो वेरी वेल, पहले हमने जनरल एंट्री पास करनी है. जनरल एंट्री क्या होती है? एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर द जनरल एंट्री विल बी share capital account debit to share forfeiture to calls in area. बेसिकली शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होता है? किस वैल्यू से डेबिट होता है? द अमाउंट विच आर कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर. हाउ मेनी फॉरफिटेड शेयर आर देयर? 500, एंड द कॉल्ड अप वैल्यू इज 10. सो द शेयर कैपिटल वैल्यू विल बी डेबिटेड टू द 5000. हाउ? दैट इज एन 500 शेयर, और एक शेयर में हमने कॉल्ड अप कितना किया? दैट इज एन 10. एंड इन द फॉरफीचर अकाउंट यू कैन सी दैट शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द अमाउंट which are received by the company on such share. So you can see that इस क्वेश्चन में नॉन पेमेंट होता है पैसा नहीं मिला. 10 में से 5 नहीं मिला तो कितना मिला होगा? सर वेरी इजी, हमें मिला होगा 5 रुपीज ऑन 500 शेयर. सो फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने से क्रिएट होगा? 2500 से. सो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट 5000 में 2500 मिल गया, इट मींस कितना नहीं मिला? 2500. So the general entry of the forfeiture of share in this situation, that is share capital account debit to share forfeiture to calls in area. Okay, the second entry, as you can see that out of, देखा ना, out of such share, यानी कि 500 शेयर में से हमने 100 शेयर क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया. आउट ऑफ द 500 शेयर हमने 100 शेयर को क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया. सो जब हम रीइश्यू करेंगे, सो द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, और इशू किस पे हो रहा है? देख लो, 9 रुपए पे हो रहा है. शेयर है 10 रुपए का, तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एंड कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 100 एज फुल्ली पेड अप. तो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10. सो द शेयर कैपिटल विल बी क्रिएटेड बाय द 1000, एंड बैंक अमाउंट में कितना लिखते हैं? 9 रुपीज हमें इशू हो रहा है. सो 100 into 9, दैट इज 900. And share forfeiture account will be debited by 100.
So the entry of the reissue of 100 share, that is in bank account debit 900, share forfeiture account 100, to share capital 1000. Okay, and the third entry, that is an amount transfer to capital reserve. You know very well, after the reissue of the share, the balance in share forfeiture account will be transferred to the capital reserve account. But this is a situation जहां पे हमने forfeit कितना किया है 500 share, but reissue कितना किया है 100 share. So you can see that in this question the reissued share is less than, in this situation the reissued share is less than the forfeited share. यानी हमने share reissue कितना किया only 100, forfeit कितना किया 500. So you can see that ये situation में हम जब भी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो एक फॉर्मूला यूज होता था, याद होगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. इस सिचुएशन में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे एंड द फॉर्मूला क्या होता था, याद है सबको? नहीं याद है? द फॉर्मूला इज, यू नो वेरी वेल, इन दिस सिचुएशन वी फॉलो द फॉर्मूला दैट इज व्हेन reissued share is less than the forfeited share. When reissued share is less than the forfeited share, so the formula is total forfeited amount divided by total forfeited share into reissued share minus amount used या यूटिलाइज्ड ऑन रीइशू, यानी जितना पैसा हमने रीइशू के टाइम यूटिलाइज कर लिया. सो यू कैन सी दैट टोटल फॉरफीचर मनी विल बी 2500 एंड टोटल फॉरफीचर शेयर इज 500. हमने कितना शेयर फॉरफीट किया है? 500 शेयर फॉरफीट किया है. सो टोटल फॉरफीटेड मनी इज 2500. कितने शेयर पे? 500 पे. बट हमने रीइशू कितना किया? ओनली 100 माइनस अमाउंट यूज्ड ऑन रीइशू. रीइशू के टाइम कितना हमने यूज कर लिया? 100 रुपीज. सो यू कैन सी दैट फॉर फीचर मनी थी 500, जिसमें से 100 रुपए हमने यूटिलाइज कर दिया. सो 400 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. सो पहले का आंसर होगा 400 रुपीज, और जिसका 400 रुपीज लिखा है आया है, इट इज वेरी करेक्ट. सो यू कैन सी दैट वी फाइंड आउट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज इन 400. और इसकी एंट्री क्या होती है? यू नो वेरी वेल, द एंट्री विल बी अ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अमाउंट क्या होगा? 400. ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, दैट इज एन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज इन 400. नाउ वी आर मूविंग टू द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा होगा? सो उसके लिए आप क्या करेंगे? टोटल फॉरफीचर मनी दिख रहा है आपको? यस सर, 2500. उसमें से जितनी बार फॉरफीचर वैल्यू डेबिट हुई है, एक बार 100 डेबिट हुई है और एक बार 400 डेबिट हुई है. सो इसका मतलब आपने 2500 में से 100 रुपीज यूटिलाइज कर दिया एट द टाइम ऑफ रीइशू और 400 भेज दिया कैपिटल रिजर्व. अभी आपके पास कितना फॉरफीचर बचा हुआ है? 2000. सो द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, that is in balance in share forfeiture account, is rupees 2000. Okay, so how we will calculate the amount transferred to capital reserve? With the help of the formula, that is in total forfeited amount divided by total forfeited share into reissue share minus amount used on reissue. 2500 divided by 500 into 100 minus 100 equals to 500 minus 100 equals to 400. So the 400 value will be transferred to the capital reserve and the entry will be share forfeiture account debit to capital reserve. But when we are talking about the balance in share forfeiture account, so the balance in share forfeiture account is calculated in the simplest way, that is in total forfeited money minus amount debited in share forfeiture account. So total forfeiture money is 2500, 100 debited, 400 debited, and total debited value will be 500. 2500 minus 500 equals to the 2000. So the answer of this question, that is an amount transferred to capital reserve, is 500 and 2000 are still, 400 and 2000 are still remain in the share forfeiture account. So I request to all the students, kindly note down all the solution in your copy properly, and thereafter we will move to the next topic of today's video, that is an
issue of debenture for consideration other than cash. So हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं. The second topic will be a issue of debenture for consideration other than cash. So ये सिचुएशन कौन कौन सी है पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड द सिचुएशन आर issue of debenture for consideration other than cash. Issue of debenture for consideration other than cash. What is the meaning of such transaction and such condition? That is, you know very well, basically company issued debenture and share for the arranging of fund. यानी जनरली कंपनी क्या करती है, डिबेंचर और शेयर को इसलिए इशू करती है ताकि वो कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सके. बट कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन ऐसी होती हैं जहां कंपनी अपने शेयर एंड डिबेंचर को पैसे अरेंज करने के लिए यानी कैश अरेंज करने के लिए इशू नहीं करती. एंड दीज आर द फ्यू कंडीशन वेयर डिबेंचर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यानी कि इसमें अगर कंपनी अपना डिबेंचर इशू करेगी तो उसके बदले उसे कैश नहीं मिलेगा, उसके बदले उसे अदर थिंग्स मिल सकती हैं विच आर इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म. सो दीज आर द कंडीशन इज व्हेन द डिबेंचर आर इशूड टू द public or the any specific person for consideration other than cash. And these are the situation are number one, when debenture are issued to the promoter. Okay, कभी कभी हम अपने कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करती है प्रमोटर को क्यों देती है? क्योंकि प्रमोटर का काम होता है कंपनी को एस्टैब्लिश करना, इनकॉर्पोरेट करना. तो प्रमोटर को उसके काम के लिए हम उसको मनी में पेमेंट कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन में कंपनी प्रमोटर को कंपनी का शेयर या डिबेंचर प्रोवाइड करती है. सेकेंड, कौन सा सिचुएशन है जहां पर कंपनी डिबेंचर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? दैट इज इन टू अंडरराइटर्स. यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि कोई भी डिबेंचर हो या शेयर हो उससे रिलेटेड एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल है कि कंपनी को स्पेशली फॉर द पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने या डिबेंचर इशू करने के बाद पर्टिकुलर इतनी वैल्यू उसे रिसीव हो जानी चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम. उसके लिए वो क्या करते हैं? अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं. अंडरराइटर्स क्या होते हैं? अंडरराइटर्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के शेयर एंड डिबेंचर को अपने रिस्क पर सोल्ड आउट करते हैं इन द मार्केट. सो अंडरराइटर को उनकी सर्विस के लिए कंपनी कैश में भी पेमेंट कर सकती है. कंपनी अपना शेयर या डिबेंचर दे सकती है. सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनीज एटीट्यूड. ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन that is an promoter, issue of debenture to promoter, and second will be a underwriters. Third will be issue of debenture for consideration other than cash for purchasing in assets. कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, एसेट्स खरीदने के बदले पेमेंट ना कर उस वेंडर को जिससे उसने एसेट्स खरीदी है उसको वो क्या कर देता है? डिबेंचर दे देता है. एंड नंबर 4 इज ऑन द परचेज ऑफ द बिजनेस. कभी कभी एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है, तो खरीदने के केस में कंपनी क्या करती है? दूसरे कंपनी के वेंडर को, जो कंपनी सेलर है, जो कंपनी अपनी सोल्ड आउट कर रहा है, उसको कंपनी पेमेंट ना करके कैश में बल्कि अपनी कंपनी का शेयर या डिबेंचर दे सकती है. सो इशू ऑफ शेयर हो या इशू ऑफ डिबेंचर हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है, शेयर की जगह हम डिबेंचर इशू करते हैं या डिबेंचर की जगह शेयर इशू करते हैं. बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर जस्ट सेम. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर को हम पार और प्रीमियम पे इशू करते हैं, बट डिबेंचर को हम 3 तरह से इशू कर सकते हैं: पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट.
So this is the very important topic of today's video, that is an issue of debenture for consideration rather than cash. And these conditions are: first, issue the debenture to promoter, issue the debenture to underwriter, issue to debenture to for purchasing an assets, and issue of debenture for purchasing another business. So the journal entry मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. अगर प्रमोटर को कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, सो इस सिचुएशन में एंट्री होगी, पहली एंट्री, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर. ठीक. And thereafter the second entry will be promoters account debit 2% debenture. Okay. Number second, when a company issue a debenture to underwriter. ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, बस एक बार रिवाइज करना है आपको, वही मैं करा रहा हूं. सेकेंड विल बी underwriting commission account debit to underwriting commission account debit to underwriter, and number B, underwriter account debit to 2% debenture. And number third, when company issue a debenture for purchasing and any other assets, यानी assets खरीदने के लिए अगर issue होता है, so the journal entry will be sundry assets account debit to vendor, and number second, vendor account debit 2% debenture. Okay, so these are the entries related to the issue of debenture for consideration other than cash in first three situations: when issue of debenture to promoter, when debenture are issued to the underwriter, when issue of debenture to vendor on purchasing any assets. इसमें एक फॉर्मूला भी यूज होता है. समटाइम्स वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशू डिबेंचर. इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज एन परचेस कंसिडरेशन, यानी वो हमने कितने में एसेट्स खरीदा, हमने अंडरराइटर को कितना पे किया, और हमने कह सकते हो प्रमोटर को कितना पे किया. सो उस पेमेंट के बेसिस पे हम वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशू डिबेंचर. तो नंबर ऑफ इशू डिबेंचर इक्वल्स टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. इशू प्राइस मीन्स अगर पार पे है तो फेस वैल्यू विल बी टेकन एज एन इशू प्राइस, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम विल बी एडेड इन द फेस वैल्यू, एंड डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, सो discount value will be deducted from the face value. So these are the journal entries related to the first three case related to the issue of debenture for consideration other than cash. अभी चौथा कंडीशन बच गया है, उस पे अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम इन तीनों कंडीशन पर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ओके. So now the first question which are related to the issue of debenture for consideration other than cash. So kindly listen carefully. While Limited purchased machinery rupees 55,000 from Jed Limited, 10% was paid by Y Limited by accepting a bills of exchange in favor of Jed Limited, and the balance was paid by the issue of 9% debenture of rupees 100 each at par, redeemable after 5 years. Pass necessary journal entries in the books of Y Limited. इस क्वेश्चन में कह रहा है Y Limited ने मशीनरी परचेस की किसकी? Y Limited की. ठीक है, जेड लिमिटेड से. So the question is X लिमिटेड ने Y लिमिटेड ने मशीनरी परचेस की कहां से? जेड लिमिटेड से. सो द एंट्री
question number 15 is, so the first journal entry will be a machinery account debit to, कहां से खरीद रहे हैं, जेड लिमिटेड से, कितने की मशीनरी है, दैट इज इन 55,000. Okay, now the second entry, firstly we purchased a machinery of rupees 55,000 from Jet Limited. 10% was paid by Y Limited by accepting a bills of exchange. 10% यानी 55,000 का 10% कितना हुआ, 5,500. हमने क्या किया, bills of exchange accept कर लिया. So the entry will be of accepting the bills of exchange is Jet Limited account debit to bills payable. कितना, 55,000 का 10%. So that is in 5,500. अब उसके लिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट के लिए, एंड रिमेनिंग बैलेंस वॉज पेड बाई द इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार. यानी इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं. तो उसके लिए याद है आपको, मैं क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इशू डिबेंचर. अब आप बताओ उसको बैलेंस कितना पे करना है. 55,000 की मशीन थी जिसमें से 5,500 तो मैंने ऑलरेडी उसको बिल्स थमा दिया. सो the value of rupees, that is in 49,500, and what is the issue price, that is in 100. So 49,500 divided by 100, so number of issued debenture is 495. So how many debenture are issued by the company to the Jet Limited, that is 495. So the third entry will be, as you can see that Jet Limited account debit, Jet Limited को हमें कितना देना था, 4,95,000, और उसको हम क्या पे कर रहे हैं, कितना परसेंट डिबेंचर, रेट ऑफ द डिबेंचर इज 9% to 9% डिबेंचर, 4,95,000. So you can see that solution is very easy of this question, and this condition is related to the when debenture are issued for consideration other than cash for purchasing an assets. यहां पर आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन थर्ड कंडीशन से रिलेटेड था, जहां हमने एसेट्स खरीदने के लिए डिबेंचर को इशू किया. पहले ने एसेट्स खरीदा, कुछ पार्ट हमने बिल्स के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और बैलेंस वैल्यू को वी विल पेड बाय द इशू ऑफ द डिबेंचर. एंड बिफोर द इशू ऑफ डिबेंचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इशू डिबेंचर. ओके, सो आई रिक्वेस्ट please note down this solution in your copy properly. Now we are moving to the next question. So the next question is the next question is X company issued 5,000 9% debenture of rupees 10 to underwriter at 10% discount, as well as 2,000 11% debenture of rupees 100 each to promoters for their services at 10% premium. So this is a question कि X लिमिटेड ने इशू किया 5,009% डिबेंचर. एक डिबेंचर था 10 रुपए का, किसको इशू किया, अंडरराइटर को. किस पे इशू किया, 10% डिस्काउंट पे, और साथ ही साथ उसने 2,011% डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का, किसको, प्रमोटर को, उसकी सर्विस के लिए, किस पे, 10% प्रीमियम पे. पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल entries. Okay,
So this question is related to the issue of debenture to promoter and issue of debenture to underwriter. It means this situation is called issue of debenture for consideration other than cash. So you can see that पहले हमने किसको इशू किया, अंडरराइटर्स को. सो एंट्री विल बी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर इशू किया है, 9% डिबेंचर. सो यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द 9% डिबेंचर इज 5000 into 10, 5000 into 10, that is in 50,000. Okay, and किस पे इशू किया है, 10% डिस्काउंट पे. So you know very well discount will be debited or credited. Discount is a loss, that's why it will be a debited. So the value is discount on issue of 9% debenture debited, that is in 10% of the total debenture. 50,000, 10%, that is in 5,000. So 50,000 minus 5,000 equals to 45,000. So this is the entry of the first condition when debenture are issued to the underwriter for their services. Second, as well as 2011% debenture of 100 each to promoter for their service at 10% premium. यहां पर हमने प्रमोटर को इशू किया. सो उसका एंट्री क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन. देखो कितना इजी है, अगर आपको एंट्री का कॉन्सेप्ट याद है तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही इजी तरह से कर लोगे. सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 11% डिबेंचर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, 2000 into 100, दैट इज एन 2 लाख. एंड किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे, एट 10% प्रीमियम. सो प्रीमियम को क्या करते हैं, क्रेडिट. किस नाम से क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम. 2 लाख का 10%, दैट इज इन 20,000. सो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस विल बी 2,20,000. अगर डिस्काउंट है सो अंडरराइटिंग कमीशन कम बियर हुआ, और अगर प्रॉफिट है तो उस सिचुएशन में आपका अंडरराइटिंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ज्यादा बियर हुआ. यानी प्रीमियम के केस में आपने ज्यादा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बियर किया है, बट डिस्काउंट के केस में आपने अंडरराइटिंग कमीशन कम बियर किया है. एंड नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में ऑलरेडी नंबर ऑफ डिबेंचर इज गिवन. ओके, सो प्लीज नोट डाउन all the questions and all the solution in your copy properly. So in today's video we discussed the first two question which are related to the issue of debenture for consideration other than cash. And you can see that some of the important situation when company issued its debenture for consideration other than cash. यानी जब company डिबेंचर को इशू करती है कैश के लिए नहीं, कैश के अलावा. एंड देयर आर बेसिकली 4 सिचुएशन व्हेन कंपनी issued its debenture for consideration other than cash. That is, in first, issue of debenture to promoter for their services as an incorporation expenses, issue of debenture to underwriter for their services as an underwriting commission. Third, issue of debenture for purchasing an assets from vendor. And fourth, issue of debenture for purchasing the another company, for purchasing the another businesses. Okay, and this is a very important. If there is any discount, so it will be debited, and if there is any premium, so it will be a credited. As you can see that in the share and issue of debenture, because the little bit difference between the issue of share and issue of debenture for consideration other than cash is debenture are issued at 3 price, par, premium and discount, but shares are issued at 2 price, par and premium. शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं, दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिबेंचर का इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश के कंपैरिजन में, के पार्ट में. ओके, सो आई होप टुडे वी डिस्कस्ड all the things and all the topics very easily,
एंड द फोर्थ कंडीशन, हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया है, प्रमोटर पे डिस्कस किया, अंडरराइटर पे डिस्कस किया, एसेट्स पे डिस्कस किया है. अभी हम लोगों ने फोर्थ कंडीशन, दैट इज एन इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेजिंग द बिजनेस, अनदर बिजनेस, ये कंडीशन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.